कोई डाउट आया तो यू कैन आस्क मी, नहीं पढ़ा तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। पुश एंड पॉप, पुश एंड पॉप ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। आई होप सब यहीं पे हैं, बच्चे आए। There are 20 students so far. So we are starting the class with the 20 students. Let them join. सो रहे होंगे अभी तक। पुश एंड पॉप, push and pop, I've already told you about what push and pop does. You when you assign a stack area to your program, that stack area is handled by push and pop. There are 6 forms of push and pop instruction: register, memory, immediate, segment register, flags, and all registers. This we have already discussed, and this you can easily know what they are doing. Register, registering, suppose push register, if I'm pushing the contents of register into the stack, then it's a push register. Pop register, that means I'm popping the contents of a stack into some register. That's pop. Push memory, you're pushing the memory contents of some memory offset into the stack. And pop, you're also doing the same. Immediate के case में you're pushing the immediate data to the stack, but you cannot pop the immediate data. ठीक है? So when it's come to immediate push या pop, the push only works. Pop can immediate data cannot be popped out of the stack. Segment register, we are dealing with a segment register. In that case, flags, pushing and popping with the flags bit, all registers, that I have told you in the previous chapter also, that when you push and pop all the registers in a sequence. So all the registers will be pushed in a sequence and will be popped in a sequence. In the sequence opposite to the sequence in which they were pushed. We'll know about them in a detail. So come to this push and pop, immediate and push A and pop A, all registers available. जो ये particular push and pops हैं, ये immediate और push all registers वाली, they are only available for 286 to core 2. What you are studying is 86 and 88 के basis पे आप programming करते हो, so you cannot use them in your program directly. Now come to the all the push and pops. ये टेबल आपकी बुक में भी दी हुई है, एक बार देख लेना, एक बार हेल्दी आइज, एक बार हेल्दी ग्लैंस देना, you will get to know about that. Pop flags, remove a word from the stack and place it in the flag register. Pop FD removes a double word. यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, because अगर by default है तो normally by default byte होता है, but byte size instruction cannot be, byte size data cannot be pushed or popped from the stack. So if there's nothing appended, that means it's a word size data, and if it's de-appended, so it's a double word size data. ठीक है? So push F copies the flag register to the stack. Push FD copies the E flag register to the stack. इन सब के बारे में पढ़ना, एक नजर मारना, एक रीड मारना, और आपको ये ऑलमोस्ट लर्न हो जाएंगी। लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसे इतना ज्यादा कोई पूछता नहीं है कि कौन सी पुश है, तो मेन पुश एंड पॉप पूछते हैं वो है, ऑल रजिस्टर्स वाली पूछ लेते हैं। ठीक है? तो register addressing, I've already told you, allows the contents of any 16-bit register to transfer to and from the stack. Memory addressing instructions store contents of 16 or 32-bit memory location on the stack. वही जो मैंने आपको बताया, ये वही सब कुछ बता रहा है कि रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होता है, मेमोरी एड्रेसिंग के केस में क्या होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग के केस में क्या होता है। इमीडिएट डेटा कैन बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक बट नॉट पॉप्ड ऑफ द स्टैक। सेगमेंट रजिस्टर के केस में you can have this content of a segment register pushed onto the stack and removed from the stack by pop. Flags के case में you can store the contents of a flag register onto the stack and remove the contents of that flag register of that flag register from that stack. Flags register का केस कब होता है? सपोज आप एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, उस प्रोग्राम में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे फ्लैग्स के थ्रू मैनेज हो रहे हैं। मतलब फ्लैग्स की बिट्स जो हैं उनके चेंजेस को काउंट किए हुए हैं कि इस वाली इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट 0 था तो ये वाला फ्लैग 0 है या 1 है, इस वाले का 1 था तो इसका 1 या 0 है, जो भी है सब कुछ अब आप दूसरे प्रोग्राम पे स्विच कर जाते हो। अभी आपका जो सिस्टम ओएस है किसी दूसरे प्रोग्राम को हैंडल करने लगता है, बट यू हैव टू कम बैक टू दिस प्रोग्राम ऑल्सो। आपने ये वाला प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम ए सपोज आपने पूरा नहीं है एग्जीक्यूट किया है और प्रोग्राम बी पे आप स्विच कर जाते हो। डीएमए कंट्रोलर सुना है ना आप लोगों ने, डीएमए कंट्रोलर पढ़ा होगा। जब हमारे
हम एक प्रोग्राम पे काम करते हुए जब हमारे पास दूसरे प्रोग्राम की रिक्वेस्ट आती है तो हम पहले प्रोग्राम से स्विच कर जाते हैं दूसरे प्रोग्राम पे और पहले प्रोग्राम के कंटेंट को डेटा को सेव कर देते हैं। तो दिस इज द सेम थिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप पहले प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, प्रोग्राम ए पे काम कर रहे थे, तो उसका जो भी कंडीशंस वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह थे, वो सब फ्लैग रजिस्टर्स के थ्रू आपको डिनोट किए हुए थे। तो आपने सबसे पहले क्या किया, स्टैक में वो फ्लैग रजिस्टर्स का कंटेंट डाल दिया, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आप वापस से ए पे स्विच करो तो आपको वही जहाँ पे आपने छोड़ा था प्रोग्राम वहीं से आपको मिले। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर को इसलिए पुश एंड पॉप किया जाता है। Next are the push always transfer 2 bytes of data to the stack. You know very well. Above 80386, it can be 4 or 2 bytes. Push A instruction copies the content of internal register set. जितने भी internal register हैं उन सबको push कर देता है, ठीक है, and they goes in this sequence. पहले AX जाता है, फिर CX, फिर DX, फिर BX, SP, BP, SI and TI, ठीक है। So push A is push all. Similarly आपकी pop होती है, पहले पुश के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर पुश होता है पुश एफ, पुश फ्लैग। वो जो फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट होते हैं उसको स्टैक में डाल देता है। पुश एडी एंड पॉप एडी, ये दिस इज फॉर द डबल वर्ड साइज ऑफ फ्लैग, डबल वर्ड साइज ऑफ इंटरनल रजिस्टर। 32 बिट रजिस्टर को जितने भी सारे के सारे 32 बिट रजिस्टर्स हैं उनको पुश एंड पॉप कर दो, बट दीज इंस्ट्रक्शंस आर ओनली अवेलेबल फॉर 80386 टू Pentium 4, ठीक है। Next, you have push and pop instructions do not function in 64-bit mode. These instructions are not valid for your 64-bit mode because 64-bit mode is kind of very linear when it comes to data handling. So वहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। Next आता है example. You have already seen so many examples of नहीं, push and pop के तो example शायद बहुत ही कम देखे हो। चलो let's take an example of push AX, ठीक है। This instruction is shown at the point after execution. जब आपकी ये push AX execute हो जाएगी उसके बाद का इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिखाया है। तो सपोज आपके AX में 68B3 था, 68B3 आपका उस लोकेशन पे चला गया जहाँ पे भी आपका SP पॉइंट कर रहा था, एंड आपका जो SP है उसको SP का लोकेशन कैसे पता लगेगी आपको, आप SS के कंटेंट को लोगे, ये वही है सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग। SS के कंटेंट को लोगे, उसमें 10 अपेंड करोगे, 3A7FE प्लस करोगे, यू विल गेट 37FE, 07FE प्लस करोगे, you will get 37FE. You'll go to that location, you'll push the content and you will get your desired and you will get your instruction pushed into the stack, ठीक है। और आपका जो ये है ये इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 2 से। जब भी आप पुश करते हो तो डिक्रीमेंट होता है 2 से, और जब भी आप पॉप करते हो तो इंक्रीमेंट होता है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करने के बाद में आपका जो SP होगा वो पहले यहाँ पे होगा, ठीक है, और जब आपने डेटा डाल दिया तो वो 2 इंक्रीमेंट होके 37FE पे आ गया। सो आपका SP एंड SS उसी हिसाब से चेंज हो गया, ठीक है। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज आफ्टर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले की अगर हम बात करें तो यार SP मस्ट बी 3800 और 0800, ठीक है, और 300 आपका SS तो सेम ही रहेगा, तो आपका SP पहले जो होगा वो 800 होगा। तो जब आपने डेटा पुश किया SP-1 में और SP-2 में, फिर 2 से डिक्रीमेंट हो गया, तो योर न्यू SP वाज 7FE, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज हम चैप्टर 3 में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि कैसे जब हम डेटा पुश करते हैं तो हमारा जो लो ऑर्डर बिट्स है वो SP-1 में जाती है और हमारी हाई ऑर्डर बिट्स जो है वो SP-2 में जाती हैं, और उसके बाद हमारा जो SP का कंटेंट है वो 2 से डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है बिकॉज दिस इज द केस ऑफ आफ्टर एग्जीक्यूशन, हमारा अर्लियर SP वाज हियर, सो नाउ इट हैज डिक्रीमेंटेड टू दिस। Okay, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, डायग्राम इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, only just I want to revise you the thing that we have studied in chapter 3 because somewhere it will also keep on repeat those things. Push A, ये मैंने पूछी जा रही है ना, हाँ। पुश ए इंस्ट्रक्शन pushes all the internal, बार बार बता रहा है कि पुश इंस्ट्रक्शन क्या करती है, 16 बिट रजिस्टर को स्टैक में डाल देती है, एंड द सीक्वेंस इज AX, DX, CX, whatever the sequence is, I don't remember it, but you have to remember it because it asked in पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि पुश ए का ये पॉप ए का किस तरीके से कंटेंट जो है वो स्टैक्स में चलता है, ठीक है। After all registers are pushed, the contents of SP registers are decremented by 6. Obvious है, because जब एक वर्ड आप डालते हो, जब आप एक वर्ड का डेटा पुश करते हो तो यू डिक्रीमेंट द
SP by 2. Now you are putting 8 words अगर आप डाल रहे हो तो 8 into 2 16, it will be decremented by 16. ठीक है. Push A is very useful when the entire register set, ये बता सकते. Push AD instruction, the push A, while push A uses or pushes 16-bit registers, the push AD instruction places 32-bit registers. ठीक है. That D denotes double word. This is the sequence: AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI. ठीक है. और SP आपका पुश के बाद जो है वो ये आ जाएगा. सबसे पहले AX आया, फिर CX आया, फिर DX आया, फिर BX, फिर, और जब आपको पॉप होना शुरू होगा तो यहाँ से पॉप होना शुरू होगा. DI पहले पॉप होगा, फिर SI पॉप होगा, फिर BP, फिर ये. ठीक है. Now come to the pop. Pop is the inverse of push. Pop, when you're pushing some contents on the stack, pop is doing pulling out the contents out of the stack. ठीक है. It's also the same. अगर आपको push एक बार पता चल गई, push A, push AD, and pop A, pop AD is everything same, except that it is taking the contents out of your stack. ठीक है. Pop flags remove 16-bit number from the stack and places it in the flag registers. यार मेरा mic तो on है ना. ठीक है. तो ठीक है, रिपीटेटिव चीजें बोले जा रहे हैं, बट हाँ मैं एक बार पढ़ा देती हूँ आपको जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. पॉप एफ फ्लैग्स जो है वो 16 बिट नंबर को, जो 16 बिट ऑफ कंटेंट है फ्लैग का, उसको फ्लैग रजिस्टर में डाल देती है. ठीक है. सो मैंने आपको बताया कि क्या इसका यूज होता है कि इफ यू आर स्विचिंग बिटवीन मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम, सो यू हैव टू हैव द डेटा एंड द टाइम स्टैम्प, और कहते हैं ना एक मिलियन कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था वहां तक की पता होना चाहिए कि आपको यहाँ तक का ये रिजल्ट था, वो आप फ्लैग में डाल के स्टोर, फिर उसको वापस से रिट्रीव करते हो तो आपको प्रोग्राम उसी स्टेज में मिलता है जो स्टेज पे आपने छोड़ा था. यू डोंट हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्ट, बिकॉज आपको जो सीपीयू होता है ना उसके पास एक साथ वो बहुत सारे प्रोग्राम, इट्स अ मल्टीटास्किंग मशीन. सो मल्टीटास्किंग मशीन के टाइम पे वो एक साथ में बड़े सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके ही प्रोग्राम पे डेडिकेटेड है, बट दैट्स नॉट द केस. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट थिंग्स इन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ के आए हो कि हाउ योर ओएस स्विचेस फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर. सो दैट वन प्रोग्राम, अगर मैं ए प्रोग्राम को छोड़ के बी प्रोग्राम पे स्विच करती हूँ, तो अगर मैं ए प्रोग्राम का सारा कंटेंट ही खो देती हूँ तो मुझे ए प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो सोच रहे हो कि मेरा सीपीयू तो इसी में लगा रहेगा, इसको एग्जीक्यूट करने के चक्कर में इसे पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसे अब इस पे स्विच होने के चक्कर में इसे पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा एक प्रोग्राम कभी भी एक टाइम स्टैम्प में एक टाइम में पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता. ये आप सब पढ़ के आए हो राउंड रॉबिन वगैरह कि कितना कितना टाइम मिलता है हर प्रोग्राम को. ठीक है. अगर आपकी लिस्ट में P1, P2, P3, P4 है और आप राउंड रॉबिन ही लेते हो तो आप कितना कितना टाइम हर P1, P2, P3 को देते हो. ठीक है. तो उतने टाइम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता. तो जब आप किसी दूसरे प्रोग्राम पे स्विच करते हो, यू शुड हैव द डेटा कि कहाँ पे हमने उस प्रोग्राम को छोड़ा था. सो दैट्स व्हाई योर stacks come in picture. ठीक है. तो सिमिलरली पॉप और रिमूव इन द ऑर्डर DISI BP, जिस ऑर्डर से पुश हुए थे उसके अपोजिट ऑर्डर में पॉप हो जाते हैं. पॉप का भी वही है, एंड दिस इज आल्सो द केस ऑफ आफ्टर एग्जीक्यूशन. आफ्टर एग्जीक्यूशन में आपका इस बार जो पॉप होगा, इस बार जो आपको पॉप होगा, इट वुड बी हेयर. ठीक है. एंड व्हेन इट गॉट इंक्रीमेंटेड इट केम टू हेयर. जब आपका डेटा पॉप हुआ, यू गॉट 3, 9 एंड 2F. SP से और SP+1 से आपको 3, 9 एंड 2F मिल गया. उसके बाद आपने इंक्रीमेंट करके आपका जो SP था वो 01008 बन गया. ठीक है. सो दिस इज आफ्टर एग्जीक्यूशन. बिफोर एग्जीक्यूशन योर SP मस्ट बी 1006. यहाँ पे 1008 है ना. Before execution, it must be 1006. Now you have popped the data from 1006 and 1007. You have incremented the SP to 1008 because next time if someone tries to, अगर कोई पॉप करना चाहे डेटा, तो 1008 पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे डेटा होगा, बिकॉज आपका स्टैक जो है ना इस तरीके से भरता है, ऊपर की तरफ भर रहा होता है और नीचे की तरफ खाली हो रहा होता है. ठीक है. और अगर कोई पुश करना चाहे तो ये वाली जो एंट्रीज हैं ये खाली है, यहाँ पे पुश हो जाएगा, और ये वाली जो एंट्रीज हैं ये सारी भरी हुई हैं, तो यहाँ से पॉप हो जाएगा. ठीक है. तो दैट्स व्हाई हम इस तरीके से, चिराग का आई गेस डाउट था लास्ट टाइम कि क्यों हम इस तरीके से हैंडल करते हैं कि SP+1 हम SP+1 में पुश भी तो कर सकते हैं, या SP+1 में पुश करके SP-1 और SP-2 में पॉप कर दे. उसका सिर्फ एक ही
रीजन था क्योंकि हमें लीफो मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सो योर स्टैक ऑलवेज फिल्स लाइक दिस, अपर साइड पे फिल होता है और आपका जो पॉप है वो नीचे, पॉप जो होता है आपका ऊपर ऊपर पॉप होता जाता है और पुश है आपका पॉप ऊपर से होता जाता है और पुश आपका नीचे 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 होता जाता है, ठीक है। Initializing the stack, I have already told you how to initialize the stack. All segments are cyclic in nature. Your stack segment is also cyclic in nature. So your first stack pointer is pointing to the beginning of the stack, and if you try to push something into it, it will go to the top of the stack. That's why your stack feels like this. That's why your stack feels like this and pops like this. Okay. So if when your stack segment is being created and your stack SS containing this and your SP also containing this, and if you're trying to push something into the first entry of the stack, it will go to this because the first entry goes to the SP -1 and the second entry goes to the SP -2. So that's why your stack feels like this and pops up like this, okay? Because it's cyclic in nature. Push CX instruction showing the cyclic nature. देखो ये cyclic nature आपको बता रही है, इसमें क्या होगा कि this instruction is shown just before. अब this is before execution to illustrate that the stack is bottom. अब देखो यहाँ पे आपका जो SP है that is 000, जो कि मैं आपको एक example देना चाह रही थी कि आपका 000 है. You want to push something, you want to push the contents of CX which is A037. अब now when you will SP -1, जब आपका लो ऑर्डर बिट्स हैं, they should go to the SP -1 and high order bits will go to the SP -2. So when you will do the SP -1, your stack pointer will no longer remain here and it will move to here. ठीक है? That's what I was telling you before that slide also कि जब आपका स्टैक सेगमेंट क्रिएट होता है एंड आपका स्टैक पॉइंटर और आपका स्टैक एसएस की तो छोड़ो, स्टैक पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ द स्टैक पे लोकेट कर रहा होता है, तो द फर्स्ट टाइम यू पुश द स्टैक, जब आपने पुश नहीं किया तो पॉप का तो मतलब नहीं बनता, तो पॉप तो करोगे ही नहीं, तो सबसे पहले पुश ही करोगे। तो जब आपने फर्स्ट टाइम पुश किया होता है तो SP -1 पे कंटेंट जाता है आपका और SP -2 पे कंटेंट जाता है, तो हमारा स्टैक ही भरना शुरू ऊपर से होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लीफो मेंटेन कर पाते हैं. दैट्स व्हाई डिजाइन लाइक है. वी हैव someone has designed it, we don't use it directly, but we just tell that we want to push something, we want to pop something, but this what we call it, what है ना आपकी oops concepts में you abstraction, तो you are just commanding something to the system कि ये होना है, कैसे पीछे करता है वो उसके बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। Next come to the assembly language stack segment. Assembler and Lincoln program place correct stack segment address in SS. ये वही सब चीजें आपको बता रहा है कि कहाँ आपका stack segment जाता है और SP क्या SP कहाँ point करता है. These things I have already told you in the beginning of this session कि SS beginning of the chapter 2 कि SS क्या करता है, SP क्या करता है. There is no need to load these registers in your program unless you wish to change the initial values for some reason, ठीक है। इन रजिस्टर्स को आपको अपने प्रोग्राम में लोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टैक किसी टाइम पे यूज होता है तो आपके पास स्टैक अवेलेबल होता है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू इंक्लूड देम इन योर प्रोग्राम। The stack is not specified a warning, बस पढ़ते जाओ इसको, ऐसे कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज नहीं बता रहा है वो। If the stack is not specified, a warning will appear when the program is linked. Memory section is located in the program segment prefix appended to the beginning of each program file. If you use more memory for the stack, you will erase information in the PSP, information critical to the operation of your program and the computer. अगर आपको जो आप मेमोरी सेक्शन, जितने भी आपके मेमोरी सेक्शन होता है वो PSP करके फाइल होती है उसमें लोकेटेड होते हैं, तो अगर आपको स्टैक चाहिए तो सबसे पहले आपको PSP का कंटेंट मिटाना होता है, फिर आपको स्टैक एलोकेट करना होता है, फिर से PSP रिटर्न की जाती है, ठीक है। Now come to the next section. So this section was, so इस सेक्शन में अगर मैं बताऊं पुश एंड पॉप में से, so push A, push pop A, push flag, pop flag, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कोई और डायग्रामेटिकली तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, कुछ CX का डायग्राम बनाने को आपको कोई नहीं देगा, बट यू शुड नो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि आपको पेपर में अगर 2-2 नंबर में आए तो यू कैन एक्सप्लेन देम वेल। नाउ कम टू द section 4.3 of this chapter, which is
जर्नल इंस्ट्रक्शन। तो अभी तक जो थी चीजें थोड़ी टिपिकल सी थी, अब सिंपल डेफिनेशंस है कि क्या ये कर रहा है, तो ये पार्ट थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू योर beginning part. So LEA, we have already used LEA, we have already used something like that of LEA. Now we'll learn about LEA in detail. LEA क्या करता है, एक 16 और 32 बिट रजिस्टर को किसी डेटा, किसी ऑपरेंड के ऑफसेट से लोड कर देता है, ठीक है। फिर से सुनो, एक 32 या 16 या 32 बिट रजिस्टर के कंटेंट को के रजिस्टर में किसी ऑपरेंड का ऑफसेट स्टोर कर देता है, ठीक है। What you were doing in a move DL DX comma offset num, LEA can do that, LEA DX comma num, ठीक है। I've shown you both the examples in my program as well, and someone had the doubt. I think someone had the doubt. I don't remember the name of that guy, but LEA and move are doing exactly the same thing, except that in the case of move, you have to use the offset directive, but in case of LEA, you don't need that offset directive, ठीक है। So earlier examples presented by using the offset directive, ये सब मैंने बताया आपको। Offset performs same function as LEA instruction if the operand is a displacement. LEA and move with offset instruction are both the same length, 3 bytes. अब क्वेश्चन ये आता है कि when there was already move, या move के साथ offset हमेशा से थी, तो हमने LEA को क्यों ही लाए, क्यों किसी ने LEA डिजाइन करी? इसका आंसर ये है कि LEA जो है इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू योर ऑफसेट, बिकॉज ऑफसेट जो है वो आपका सिंपल ऑपरेंड के साथ काम करता है, किसी वेरिएबल नाम के साथ काम कर देगा, ठीक है, किसी वेरिएबल के नाम के साथ काम कर लेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द फाइंडिंग द ऑफसेट ऑफ सम मेमोरी लोकेशन, देन योर मूव ऑफसेट फेल्स। उस केस में आपका सिर्फ LEA काम करता है। देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ। देखो अगर आपका मेमोरी लोकेशन से आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो आपका मूव है इट इज गुड फॉर दिस ऑफसेट नम या ऑफसेट वेरिएबल नेम, यहाँ तक ठीक है। लेकिन द मोमेंट इट कम्स टू ऑफसेट लोकेशंस लाइक और ऑफसेट एड्रेसेस लाइक, उस केस में हमारा ऑफसेट मूव जो है वो फेल हो जाता है, उस केस में हमारा मूव फेल हो जाता है। तो यहाँ के लिए कॉम्प्लेक्स ऑपरेंड्स के लिए, कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मूव इसको काम नहीं कर पाता, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला केस आ जाता है वहां पे हमें LEA यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो सब डेटा के लिए हम यूज कर पाए इसलिए LEA वाज इंट्रोड्यूस। अभी क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन LEA एंड मूव। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो हमारा LEA है इट कैन वर्क विद द कॉम्प्लेक्स ऑपरेंड्स and move cannot work with the move with offset cannot work with the complex ऑपरेंड्स। सेकेंड एग्जाम्पल है इनकी स्पीड, जो स्पीड होती है हमारी मूव की फास्ट होती है एज कम्पेयर टू योर LEA, ठीक है। LEA जो है हमारा इट वर्क्स फास्टर एज कम्पेयर टू योर LEA, बिकॉज LEA के केस में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इफेक्ट LEA का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करता है, और मूव के केस में आपका जो ऑफसेट होता है, जो मूव ऑफसेट होता है उसमें आपका असेंबलर effective address calculate करता है। So that's why your LEA takes more time to execute as compared to your move, and both are of 3 bytes. So these two differences आपको देने हैं। अगर आपसे pros and cons में पूछे कि what is the pros and cons of LEA over move or move over LEA, so you have to mention this. A move cannot be worked with complex operand, but move is faster as compared to your LEA. Load effective address fields is that. Loads any 16 bits. I don't know why it's repeating same things. Now come to the LDS and LES. LDS LES आगे नहीं बताया, क्या बताया इसका देखो। LEA AX num loads AX with the offset address of num, LEA EAX num EX with the offset address of num, ठीक है। DI list ADI list, तो ये एक छोटा सा टेबल दी हुई है जिससे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो डेटा है आपका वो जाता है, किस तरीके से offset of a variable or some complex operand you can store into any register that you have mentioned,
इन योर एलडीए। एलडीए पढ़ना, एलडीएस अभी पढ़ाते हैं। अब आता है आपका एलडीएस, एलईएस, एलएफएस, एलजीएस एंड एलएसएस। डीएस डेटा सेगमेंट, ईएस एक्स्ट्रा सेगमेंट, एफएस एंड जीएस योर सप्लीमेंट्री सेगमेंट्स हुआ करते थे, एनएसएस इज योर स्टैक सेगमेंट। सो दीज आर द सेगमेंट रजिस्टर्स। सो जब हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, तो वो प्रोग्राम का जो लोकेशंस हैं दैट आर टू बी स्टोर्ड इन योर डीएस, ईएस, एफएस, जीएस। ठीक है, तो यो जो काम है वो हमारे एलडीएस, एलईएस, एलएफएस, एलजीएस और एलएसएस के काम होते हैं। एलएफएस, एलजीएस जो है वो हाई प्रोसेसर्स में अवेलेबल होते हैं, 8036 से ऊपर वाले प्रोसेसर्स में होते हैं। ठीक है, सो करती क्या ये, लोड एनी 16 और 32 बिट रजिस्टर विद एन ऑफसेट एड्रेस एंड द डीएस, ईएस, एफएस, जीएस और सेगमेंटेड रजिस्टर विद अ सेगमेंटेड एड्रेस। तो जब भी आप एलडीएस या एलईएस या एलएसएस को एग्जीक्यूट करते हो, तो एक 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 रजिस्टर में आपका ऑफसेट एड्रेस जाता है, जो भी आपने रजिस्टर मेंशन किया होता है, और एक रजिस्टर में आपका सेगमेंट रजिस्टर जाता है, सेगमेंट एड्रेस जाता है। ठीक है, सो एक ही इंस्ट्रक्शन से दो एड्रेस में डेटा फिल होता है, segment address और आपका offset address. Segment address will go to the segment register, that is depends on what statement you have used. LDS that means data segment में आपका segment address जाएगा। ठीक है, और अगर LES यूज किया तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में आपका सेगमेंट एड्रेस जाएगा। ठीक है, और आपके दूसरे जो आपने रजिस्टर मेंशन किया होता है उसमें आपका ऑफसेट एड्रेस जाता है। सो दिस इंस्ट्रक्शन कैन यूज मेमोरी बिट ऑफ टू एक्सेस 30। अब देखो इसमें जो हमारे ये एड्रेसेस स्टोर होते हैं ना, ये एक मेमोरी स्पेस में स्टोर होते हैं। ठीक है, वो मेमोरी स्पेस आपका आइदर 32 बिट होगा और 48 बिट होगा। अगर 32 बिट होता है तो उस केस में आपका 16 बिट का सेगमेंट एड्रेस बनता है और 16 बिट का ही आपका ऑफसेट एड्रेस बनता है। लेकिन अगर आपका 48 बिट का वो मेमोरी सेक्शन है, तो उस मेमोरी सेक्शन में से 16 बिट आप अभी भी सेगमेंट एड्रेस के लिए उठाते हो और रिमेनिंग 32 बिट्स आप ऑफसेट एड्रेस के लिए उठाते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना LDS, LES, LFS, LGS, whatever they are, what they do is they are used to fill our segment register and offset registers with a desired memory location. और वो registers की जो content होते हैं वो भी किसी memory part में stored होते हैं, जो system memory जिसको बोलते हैं। तो उस memory में अगर 32 bit है तो 16 bit will go to the segment address and 16 bit will go to the आपका offset address, and 48 bit है तो 16 bit will again go to the segment address and 32 bit will go to the offset address. ठीक है, here's an example of LDX, BX, DI. अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो BX में आपका ऑफसेट एड्रेस जाएगा और DI क्या है, DI से जो डेटा आपको मिलेगा उसका ऑफसेट एड्रेस आपका BX में जाएगा और उसका सेगमेंट एड्रेस आपका DS में जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है हमारा ये। this diagram is again after the execution just before DS changes. नहीं, this instruction is shown at the point just before DS changes to 3000 and BX changes to 127. ठीक है, let's go to the DI. सबसे पहले DI का कंटेंट देखते हैं, 100 है, उसको हमें DS कंटेंट में डालना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि DS में तो हमें कंटेंट फिल करना है। ठीक है, DS में तो कंटेंट फिल करना है, बट DS में तो ऑलरेडी कंटेंट है। DS में तो ऑलरेडी कंटेंट है। दिस मस्ट बी ऑफ सम अदर प्रोग्राम। नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट सम अदर प्रोग्राम। सो उस प्रोग्राम का डेटा मुझे यहाँ से मिलेगा, तो मुझे उससे रिलोड करना है। अब क्या है, मैं सबसे पहले देखती हूँ DI में मेरा 100 है, यहाँ पे 1000 है, इसको मैंने 10 से अपेंड किया। आई गॉट माई डिजायर्ड इफेक्टिव एड्रेस है 1100। मैं 1100 पे गई, यहाँ पे मुझे 7A120030 मिला, तो मुझे फर्स्ट 32 बिट यहाँ पे डेटा मिल गया। अब 32 बिट डेटा में से मेरा जो 16 बिट है दैट विल गो टू माय ऑफसेट एड्रेस, एंड जो नेक्स्ट 16 बिट है दैट विल गो टू माय डीएस। सो अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन के बाद की बात करूं, जब ये इंस्ट्रक्शन पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो मेरा डीएस हो जाएगा 3000 और मेरा जो वो हो जाएगा बीएक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 127A। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? खाली एलडीएस, ये एलडीएस कैसे काम कर रहा है, जो मुझे नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसकी सेगमेंट एड्रेस, कहाँ गया मेरा एरर, उसका सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस इस लोकेशन पे स्टोर्ड है। ठीक है, मैं इस लोकेशन पे जाती हूँ, उस लोकेशन पे जैसे ही मैं जाती हूँ तो मुझे फर्स्ट 16 बिट जो है वो ऑफसेट की मिलती है, मैंने ऑफसेट में डाल दी, और नेक्स्ट 16 बिट जो है मुझे सेगमेंट की मिलती है, मैंने सेगमेंट में डाल दी। तो दिस इज द
diagram of before execution. If we change it to the after execution, your DS will be having 3000 and your BX will be having 1278. So this is how LDS, LES, LFS, all the statements work like this. When you are changing, when you are executing from one program to other, this is how your segment registers are changed. Is this okay? समझ आया आपको? नहीं आया तो एक बार देखो, एक बार बस डायग्राम को देखो 1 मिनट के लिए और फिर देखो कौन सा पार्ट नहीं आया एंड आस्क मी, और अगर आ गया तो ठीक है, आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट. LDS LES का भी डेफिनेशन आता है. ये वाला जो सेक्शन है ना चैप्टर 4 में से अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. डायरेक्ट डेफिनेशंस आती है. व्हाट इज LEA, व्हाट इज LDS, हाउ इज LDS डिफरेंट फ्रॉम LSS. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी बिकॉज दिस इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग फॉर यू टू डू, बट हाँ इनका डेफिनेशंस आ जाएगी. सो LDS क्या करती है? LDS loads a 16-bit register with the offset and other 16-bit register, 16 bits to the offset register and 16 bit to the segment register. ठीक है, so you should know the definition and you can give an example also. चलो let's move to the next section then, if it was clear to you. The instruction transfer, the 32-bit number ये बता रहा है उसको LDS, LS instruction far is, ठीक है, सब कुछ सेम बता रहा है. Far address can be stored in memory. I have already told you about far jump and near jump. तो आप इस तरीके से किसी भी far address को store कर सकते हैं किसी memory location में, and with the help of these instructions you can jump to that particular, no, you can just access that particular part of your memory, particular part of your program or some other program. ठीक है, so this is how this work. Now come to the most useful load instruction in the LSS. LSS is the most useful because most of the times when we are just accessing, when we are just giving our program a stack segment, the stack segment is accessed by LSS instruction. So this instruction is most often used, बहुत ज्यादातर यूज होती है. So इसमें हमारा जो SS होता है और SP काम करता है, BP नहीं SP काम करता है. So SS में आप सेगमेंट एड्रेस डाल देते हो आपके स्टैक का, और SP में आप ऑफसेट एड्रेस डाल देते हो आपके ही स्टैक का. ठीक है. Now come to the disable interrupt and set interrupt instructions must be included to disable interrupts. यहाँ पे क्यों बता रहा है, आगे बता, इसका यूज आगे आएगा. Now come to string data transfer. स्ट्रिंग डेटा ट्रांसफर क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने डेटा को जिस तरह, एक सेकेंड, स्ट्रिंग डेटा ट्रांसफर जो होती है आपकी, ठीक है, अभी तक आप लोगों ने कैसे कैसे डेटा को ट्रांसफर किया? आइदर इन वर्ड साइज, आइदर इन बाइट साइज, आइदर इन डबल वर्ड साइज. ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं एक ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसफर करना चाहती हूँ तो आई हैव टू यूज स्ट्रिंग डेटा ट्रांसफर्स. आई हैव टू यूज द इंस्ट्रक्शंस that are used to transfer my string data. The string of data वो कितना भी हो सकता है, वो ब्लॉक हो सकता है, 2 ब्लॉक हो सकता है, 3 ब्लॉक हो सकता है. उसमें फिर मैं ये कंस्ट्रेंट नहीं डाल रही कि इट शुड बी अ वर्ड और अ डबल वर्ड और अ बाइट. ठीक है, तो देयर आर 5 इंस्ट्रक्शन, 5 string data transfer instruction, that is load as, store as, move as, input as and output as. Another thing बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लोड एस, व्हाट इज स्टोर एस. अगर पुराने क्वेश्चन उठा के देखोगे तो लोड एस एंड स्टोर एस तो मिल ही जाएंगी आपको. ठीक है, तो ये वाला सेक्शन जो सेक्शन 4.3 के बाद जो सेक्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर चैप्टर 4. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कम्स आउट ऑफ दिस. Each allows this single byte, word or double word before the string instructions are presented. अब मैंने आपको DI और SI फ्लैग के बारे में बताना है. बिफोर हम मूव ऑन करें लोड एस और स्टोर एस और मूव एस और इन एस पे, लेट्स गो टू द D फ्लैग और DI एंड SI. सबसे पहले जो D फ्लैग होता है आपका DI और SI का, वो डायरेक्शन फ्लैग होता है. ये जो DI की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होनी चाहिए या डिक्रीमेंट होनी चाहिए, या SI की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, डिक्रीमेंट होनी चाहिए. देखो वो कह रहा है यहाँ पे मैं अपना स्ट्रिंग ऑफ डेटा को कैसे मेंटेन कर पा रही हूँ. मैं एक DI को, मेरा जो DI है वो पर्टिकुलर किसी सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है, और जब जब मैं जैसे जैसे मैं डेटा ट्रांसफर कर देती हूँ मेरा DI जो है इंक्रीमेंट होता जाता है. सपोज मुझे 10 बाइट्स ऑफ डेटा को ट्रांसफर करवाना है तो मैं अपने DI में 10 डाल देती हूँ या DI में कोई भी नंबर डाल देती हूँ,
अब जैसे जैसे मैं नंबर को इंक्रीमेंट करूंगी या डिक्रीमेंट करूंगी, सपोज मैंने 10 को जब तक 0 ना हो जाए तब तक मुझे डेटा को ट्रांसफर करना है, तो मैं DI में 0 डाल दूंगी और मैंने उसको ये बता दिया कि DI को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते रहना है, और जैसे जैसे मेरा DI डिक्रीमेंट होता रहेगा तब तक मेरा डेटा ट्रांसफर होता रहेगा। द मोमेंट इट विल रीच टू 0 मेरा डेटा ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ DI एंड SI। तो अब देखो एक बार थियरी देख लीजिए। द डायरेक्शन फ्लैग D selects the auto increment or the auto decrement operation for the DI and SI, ठीक है। The CLD instruction clears the D flag and the STD instruction set। मम्मी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखो आपका जो CLD क्या करता है, वो ऑटो इंक्रीमेंट मतलब क्लियर कर देता है, या D को 0 कर देता है, और D का 0 का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट मोड, अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डेटा यू आर ट्रांसफरिंग एट अ टाइम। अगर आप बाइट ट्रांसफर कर रहे हो तो 1 विल बी कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग टू योर D, और अगर आप वर्ड ट्रांसफर कर रहे हो तो 2 विल बी added to 2 will be added, keep on adding to your D after every increment, ठीक है। और STD जो है वो सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट ऑटो डिक्रीमेंट मोड, सेट। और C, तो C क्या करता है, D को 0 कर देता है, और STD क्या करता है, D को 1 कर देता है। तो C जो है इट्स एन ऑटो इंक्रीमेंट मोड, और S वाला जो है वो इट्स ऑटो डिक्रीमेंट मोड। ध्यान रखना, मे बी यूज आ सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द DI एंड SI। During execution of string instruction, memory accesses occur through DI and SI registers। जो आपके मेमोरी सेगमेंट्स में जो डेटा होता है that gets access through DI and SI registers। Both registers access points to the different segments। जो DI है वो आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट को पॉइंट करता है, और जो SI है वो आपके डेटा सेगमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है। तो DI एंड SI हमेशा, DI जो है आपका हमेशा एक्स्ट्रा सेगमेंट को पॉइंट करेगा, और SI जो है हमेशा डेटा सेगमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। 32 बिट मॉडल में ये SI DI जो है EDI और SI बन जाएंगे, और आपका जो सेगमेंट होगा वो 4G बाइट का भी हो सकता है। नाउ कम टू द लोड एस। अब आपको पता चल गया DI क्या होता है, SI क्या होता है। योर DI पॉइंट्स टू द एक्स्ट्रा सेगमेंट, योर SI पॉइंट्स टू द डेटा सेगमेंट। यू हैव अ D फ्लैग, you have a D bit which can be set or clear। If it is set, that means auto decrement mode। If it is clear, that is auto increment mode, ठीक है। Now come to the load as। लोड, अब ये जो जो ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस है ये डायरेक्ट पूछी जाती है, डायरेक्ट, तो बहुत ध्यान से देखना। लोड क्या करती है, लोड्स AL AX और EAX with the data segment offset address indexed by the SI registers। SI जहां भी पॉइंट कर रहा होगा उस डेटा को AX AL या EAX में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और कितना ट्रांसफर करता है वो आपको डिपेंड करता है कि आपने कितना डेटा ट्रांसफर करना है, और SI को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। 1 is added to or subtracted from SI for a byte size load as। 2 is added or subtracted for a word size। 4 is added or subtracted for a load as। added subtracted इसलिए क्योंकि आपके D बिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि योर लोड एस क्या करती है, इट लोड्स योर AL AX और EX with the data at segment offset address indexed by your SI register, ठीक है। जो डेटा सेगमेंट पे आपका डेटा होगा, जहाँ पे SI पॉइंट कर रहा होगा, उस डेटा को वो AL AX और EX में डाल देता है, ठीक है। दिस इज योर लोड एस W। लोड एस W क्या कर रही है, इट इज a word size of data is being transferred from segment addressed by SI। SI ने जो ऑफसेट SI जहाँ पे पॉइंट किए हुए हैं वहाँ के वर्ड साइज डेटा को वो EX में डाल रहा है, एंड इट इज सेम थिंग हैपनिंग हियर। देखो आपके SI में 100 था, आपके DS में 100 था। जब आपने दोनों को सेगमेंट प्लस ऑफसेट किया तो यू गेट द लोकेशन एज 11000। आप इस पे गए, यू हैव टू ट्रांसफर वर्ड साइज डेटा। आपने वर्ड उठाए, 16 बिट उठाई, A032 आपने EX में डाल दिया, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ योर SI विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2। सो नेक्स्ट टाइम, अभी आपका SI 1000 था, अगर इंक्रीमेंट होना होगा D, अगर आपका 0 है, बिकॉज D 0 है तो इट हैज टू बी इंक्रीमेंटेड। नाउ योर SI विल बी 1002 because it has to be incremented by 2, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ कम टू द STOS।
even if in your exam you don't get this, you will get the full marks if you are able to explain this. अगर इसे explain कर देते हो अच्छे से, तो you'll get full marks. ठीक है, diagrams बहुत ज़्यादा नहीं पूछते because complex हो जाते हैं. Now come to the store X. store X का उल्टा होता है. अभी तक जो हमारा लोड एस में हो रहा था उसमें उल्टा हो रहा होता है. ये क्या करता है, ALAX और EAX के कंटेंट को एक्स्ट्रा सेगमेंट के मेमोरी लोकेशन पे DI रजिस्टर ने जो पॉइंट किए हुए हैं उस पे स्टोर कर देता है. ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, एक सेगमेंट के डेटा को जो कि हमारा SI के थ्रू पॉइंटेड था, SI के थ्रू एड्रेस था, उसको हम ALAX और EAX के कंटेंट को हम किसी एक्स्ट्रा सेगमेंट में डाल रहे हैं which is addressed by our DI register. ठीक है, again it depends on D whether it is to be incremented or decremented. इंक्रीमेंट करें, कौन आ रहा है, अब आ रही है, हेलो 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 यार प्लीज. ठीक है, कब से कटी ये स्टोरेज समझ में आया? तो स्टोरेज दोबारा बता देती हूँ ना. लोडेस में आपका क्या हो रहा था, किसी डेटा सेगमेंट के कंटेंट जो कि एड्रेस थे SI के थ्रू, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना बिकॉज SI DI में कंफ्यूज मत होना, जो कि एड्रेस थे SI के थ्रू वो आपके ALAX और EAX में स्टोर हो रहा था. स्टोरेज में क्या हो रहा है, आपके ALAX और EAX के कंटेंट को जो कि एड्रेस आप एक एक्स्ट्रा सेगमेंट में भेज रहे हो, एक्स्ट्रा सेगमेंट की किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रहे हो जो कि DI के थ्रू एड्रेस्ड है. Because your DI always point to your extra segment and your data segment is always pointed by your SI. So you should know कि storage के केस में DI यूज होता है and loaders के केस में your SI यूज होता है because these two definitions are asked innumerable of times in your previous papers. ठीक है, तो अगर ये छोटी सी definition भी दे दोगे ना, you will get the full marks. So again it has variations like store S byte which stores a byte which will use the register AL, stores a word which will use the register AX. ठीक है, और एक डबल वर्ड भी होगा उसमें D आ जाएगा, STOSD which will use a double word. Post with a repeat, एक rep हमारे पास एक डायरेक्टिव होता है. अगर हम post AL और AX और एक EX से कंटेंट को जो कंटेंट हमारा उसमें आगे जा रहा है उसको हम बार बार किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हुए किसी एक मेमोरी सेगमेंट में स्टोर करना चाहते हैं तो वी कैन यूज इट विद द ref फंक्शन. ref फंक्शन क्या होता है, ref फंक्शन इज लाइक अ लूप फंक्शन. ref फंक्शन इज लाइक अ लूप फंक्शन वेयर योर CX इज CX में आप कोई वैल्यू डालते हो, 100 वैल्यू डालते हो सपोज, तो आपका क्या होता है, जब आप ref को चलाते हो तो इट विल load or it will load नहीं, it will store the content of accumulator to a particular extra segment addressed by DI that 100 times वो चलेगा. सपोज आपके CX में अगर 100 है और 100 पे जैसे ही आपका CX 0 पहुंच जाएगा वो खत्म कर देगा. ठीक है, समझ आई बात? क्या हो रहा है कि आपने आपकी जो स्टोरेज है, स्टोरेज इज saving the content of your accumulator to a extra segment. किसी एक एक्स्ट्रा सेगमेंट में आपके कंटेंट को सेव कर रही है. हम चाहते हैं कि मेरा ALAX EAX में जैसे जैसे कंटेंट आ रहा है वो सारा का सारा EAX में किसी एक्स्ट्रा सेगमेंट में सेव हो जाए. अब एक्स्ट्रा सेगमेंट में सेव होने के लिए मुझे, अब मैं चाहती हूँ कि बार बार मैं स्टोरेज ना लिखूं, मैं नहीं चाहती अगर मुझे 10 बार AX में आया हुआ कंटेंट स्टोर करना है अपने किसी एक्स्ट्रा सेगमेंट में तो 10 बार स्टोरेज ना लिखूं, मैं क्या कर सकती हूँ, CX में 10 डाल के स्टोरेज के साथ रिपीट लगा सकती हूँ. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा स्टोरेज जो है वो 10 बार चलेगा और 10 बार मेरे AXEL का कंटेंट, AX एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर हो जाएगा और एक जगह पे स्टोर नहीं होगा क्योंकि मेरा DI जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता रहेगा एज अकॉर्डिंग टू योर D बिट. ठीक है, तो इससे अब ये वाली तो ठीक है, स्टोरेज तो ठीक है, लोडेस का क्या, अगर क्यों हम लोडेस के साथ यूज नहीं करते, बिकॉज इट्स इलॉजिकल टू यूज इट विद लोडेस. क्यों लोडेस के साथ क्यों नहीं यूज कर सकते REP को, क्यों इलॉजिकल है, बिकॉज आप एक एक्यूमुलेटर में ही ओवरराइड करे जा रहे हो कंटेंट को, चाहे आप कोई सा भी कंटेंट लो, चाहे आप 40 बाइट्स लो, 50 बाइट्स लो, कितना भी वर्ड डबल वर्ड लो, तो आप ALAX EAX में ओवरराइड करे जा रहे हो.
तो सपोज अगर आपके फर्स्ट आइटरेशन में कोई डेटा आता है, सेकंड आइटरेशन में वो डेटा ओवरराइट हो जाता है, थर्ड आइटरेशन में वो फिर से ओवरराइट हो जाता है, तो आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे. दैट्स व्हाई रैप विद लोड एस इज नॉट यूज्ड. रैप विद स्टोर एस इज वेरी कन्वीनियंट. दैट्स व्हाई वी यूज इट विद स्टोर एस ओनली. ठीक है. सो स्टोर एस एंड लोड एस आई गेस समझ में आ गया. स्टोर एस एक्यूमुलेटर रजिस्टर एक्स्ट्रा सेगमेंट. ठीक है. एक्यूमुलेटर से सामान उठाती है, एक्स्ट्रा सेगमेंट पे डालती है, एड्रेस बाय डीआई. लोड एस किसी सेगमेंट डेटा सेगमेंट से सामान उठाती है, एक्यूमुलेटर पे डालती है, एंड वो डेटा सेगमेंट पे जो एड्रेस किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, एसआई के थ्रू. ठीक है. योर डीआई और एसआई विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंडिंग ऑन योर डी बिट. नाउ कम टू द मूव एस. मूव एस अभी तक आपने मूव पढ़ा है. You have not learnt about move as. Move as is for string transfer. It's string transfer, and why it's not same as move? Because it's the only instruction. Move as is the only instruction that transfers the data between two memory location. So अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, अगर आपका एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, the only instruction which is transferring data from one memory location to another, it's move as. Move as is the only instruction that is transferring data from one memory location to another. ठीक है. अब तक हमने ये पढ़ा था कि मेमोरी टू मेमोरी जो डेटा ट्रांसफर है दैट इज इलीगल. मेमोरी कुछ भी मेमोरी टू मेमोरी कोई भी ऑपरेशन जो था वो इनवैलिड था. लेकिन मूव एस ही एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है, ये एक ऐसा ऑपरेंड कोड है, ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसके हेल्प से आप मेमोरी टू मेमोरी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है. होता कैसे है? transfer a byte, word or double word, a data segment address by SI to extra segment location address by DI. भाई ये DI है, ये DI है, ये SI नहीं है. मैं इसको ठीक कर दूंगी, अभी ठीक कर देती हूँ. तो क्या होता है, वो किसी डेटा सेगमेंट से जो कि एड्रेस्ड बाय SI है से डेटा उठा के एक्स्ट्रा सेगमेंट में डाल देती है विच इज एड्रेस्ड बाय DI. ठीक है. सो देख लो दो डेटा सेगमेंट्स हैं, एक एक्स्ट्रा सेगमेंट है, एक डेटा सेगमेंट है, दो सेगमेंट ऑफ मेमोरी हैं. सो दिस इज हाउ इट्स ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर, एंड दैट्स व्हाई इट्स द ओनली इंस्ट्रक्शन व्हिच इज ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू मेमोरी लोकेशन. ठीक है. Only the source operand located in the data segment may be overwritten, so another segment may be used. The destination operand must always be located in the extra segment. Okay, so move as is an instruction which transfer a byte, word or double word from a data segment addressed by SI segment location addressed by DI, and the SI and the value of SI and DI will be incremented or decremented based on the direction, based on your value of the direction flag. ठीक है. That is it. अगर move as के बारे में पूछते हैं तो इतना लिखते हो तो you will get the marks. Now come to the INS. अच्छा, instruction इनपुट स्ट्रिंग एंड आउटपुट स्ट्रिंग क्या करते हैं आपके, ये ट्रांसफर करते हैं बाइट, वर्ड और डबल वर्ड को फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइस टू एन एक्स्ट्रा सेगमेंट. ठीक है. मेमोरी लोकेशन एड्रेस बाय DI रजिस्टर. आपने सपोज कोई स्ट्रिंग इनपुट करवाई है, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम हम डायरेक्ट INS भी तो यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, बट हमारे जो प्रोग्राम्स हैं हम उनको 86 और 88 के बेस पे प्रोग्राम कर रहे हैं. तो 86 और 88 में INS और OUTS आपकी अवेलेबल नहीं होती. इट इज अवेलेबल इन हाई लेवल माइक्रोप्रोसेसर. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज देम डायरेक्टली इन आवर प्रोग्राम. डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी नहीं यूज कर सकते. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज INS एंड OUTS इन आवर प्रोग्राम्स. व्हाट INS एंड OUTS डज इज, INS इनपुट लेता है, इनपुट कहाँ से ले रहा होगा, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से, उसके कंटेंट को कहाँ सेव कर रहा है, एक्स्ट्रा सेगमेंट में विच इज एड्रेस बाय द DI रजिस्टर. ठीक है. सिंपल सी बात रखो याद कि INS है, ये भी पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछी जाती है. ये वाला पार्ट जो है चैप्टर 4 का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4-4, 5-5 मार्क्स में ये छोटी स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन आपको आती है. ठीक है. सो INS में ध्यान रखो, वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड सेविंग दैट कंटेंट इनटू द एक्स्ट्रा सेगमेंट एड्रेस, एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी लोकेशन एड्रेस बाय द DI रजिस्टर. दैट्स इट. खत्म. ठीक है. It is useful for inputting block of data from an external input output device directly into the memory.
One application transfer data from a disk drive to memory. Disk drives are often considered an interface as input-output devices in the computer system. With the help of in-S and out-S, you can also input data from a disk drive to the memory, to directly memory. ठीक है? But this in-S and out-S are not available for 8088 and 8086, and that's why we cannot use them in our program, because we are doing our programs based on those microprocessors only. There are three forms of INS. This should be very repetitive. INSB transferring a byte size data, W word size data, D double word size data. ठीक है? You can also use the REP prefix, repetitive prefix with your NS. For example, if you want to repetitively take input from your users through some input output device, you can use it back. You can use that REP with that. ठीक है? Now come to the outers. Outers is doing the same thing except तो आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस पे अब आपको क्या करवाना होगा, अब आपको आउटपुट देना होगा किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को, लेकिन वो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपका डेटा जहां से जाएगा दैट विल बी योर डेटा सेगमेंट एंड दैट विल बी एड्रेस्ड बाय एसआई. ठीक है? इनपुट एस में एक्स्ट्रा सेगमेंट में डेटा जा रहा था विच इज एड्रेस्ड बाय डीआई. आउट एस में डेटा सेगमेंट आप इनपुट आउटपुट डिवाइस पे डेटा दे रहे हो थ्रू द डेटा सेगमेंट addressed by SI. So these small things you have to learn, remember. ठीक है? कि कहाँ SI यूज हो रहा है, कहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट था, कहाँ पे DI था. If these things you learn very well, then you will get the full marks. Because ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और बहुत ही स्कोरिंग है. ठीक है? छोटी छोटी सी डेफिनेशन है. 64-bit mode for Pentium 4 and there is no 64-bit output, but the address in RSI 64 bits by 64-bit का कोई आउटपुट नहीं होता अगर 64-bit mode की बात करें, which is only available for Pentium 4 and Core 2. But for the time being, we are only concerned with our 8086 and 8088. ठीक है? Now come to some miscellaneous. So this part is all over, and we are coming to the next part of our chapter, which is the last part, and with this we're done with this chapter. This is again very important instruction and come for like 1122 marks. इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पार्ट में से आते हैं. चैप्टर 4.3, सेक्शन 4.3, 4.4 एंड 4.5 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आते हैं. कुछ ना आपको दिमाग लगाना होता है ना कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी होती है. यू जस्ट हैव टू लर्न थिंग्स, क्रैम थिंग्स एंड यू जस्ट हैव टू राइट देम. डायरेक्ट आंसर मिलते हैं. नाउ कमिंग टू सम मिसलेनियस ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. we'll learn about some instructions like XG, HG, LHF, XLAT. Let's learn them one by one. एक्सचेंज वेरी बहुत ही इजी सी इंस्ट्रक्शन है. मैं आपको बता देती हूँ बिना पीपीटी की हेल्प से. पीपीटी में बड़ा सारा लिखा हुआ है. दो रजिस्टर के कंटेंट को एक्सचेंज कर देता है. अगर अभी तक आपने मूव वगैरह देखा हो तो उसमें आपका सिर्फ डेस्टिनेशन रजिस्टर चेंज होता है, आपका सोर्स वही का वही रहता है. ठीक है? सोर्स में अगर 2 था तो 2 ही रहेगा, डेस्टिनेशन पे 2 हो जाएगा. एक्सचेंज के केस में आपका दोनों रजिस्टर के कंटेंट चेंज हो जाते हैं. आपका सोर्स डेस्टिनेशन बन जाता है, आपका डेस्टिनेशन सोर्स बन जाता है. ठीक है? ठीक है? एंड अगेन नो अदर इंस्ट्रक्शन इज अलाउड विद मेमोरी टू मेमोरी. ठीक है? ओनली मूव वाज अलाउड फॉर मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर. बाकी सारी इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है. ठीक है? तो अब इसमें आप वर्ड साइज डेटा यूज कर सकते हो, डबल वर्ड एक्सचेंज कर सकते हो, 16-bit रजिस्टर के बीच में एक्सचेंज कर सकते हो, 32-bit रजिस्टर्स के बीच में एक्सचेंज कर सकते हो, 8-bit रजिस्टर के बीच में एक्सचेंज कर सकते हो. आपकी विश है. एक्सचेंज क्या करता है दैट यू शुड नो. इट एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ 2 रजिस्टर्स. सोर्स डेस्टिनेशन बन जाता है, डेस्टिनेशन सोर्स बन जाता है. ओके? सोर्स का कंटेंट डेस्टिनेशन में आ जाता है, डेस्टिनेशन का कंटेंट सोर्स में आ जाता है. दिस विल बी प्रॉपर वे ऑफ सेइंग दैट. नाउ कम टू द LHF एंड SHF. LHF एंड SHF जो है ये ब्रिज इंस्ट्रक्शन होती थी. ब्रिज इंस्ट्रक्शन क्या होता था कि जब आपके जो लो लेवल माइक्रो प्रोसेसर्स के प्रोग्राम थे, जब उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज के हाई लेवल माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए तैयार किया गया तो आपकी ब्रिज इंस्ट्रक्शंस थी. उस ब्रिज इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आपने लो लेवल माइक्रो प्रोसेसर्स के प्रोग्राम को हाई लेवल माइक्रो प्रोसेसर्स के प्रोग्राम में कंपैटिबल किया. तो बहुत ही सेल्डम यूज होती हैं, अब इनका कोई यूज नहीं है बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्राम्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू योर high level microprocessors. ठीक है? You are not working in that era where 8086 and 8088 were used to be in fashion. You don't even have Pentiums in your fashion. You have i3, i7 and i5. So these instructions are these instructions are obsolete. You can say that obsolete. They are not in use anymore. But what they do is let's just
take a look. LHF instruction transfer the rightmost 8 bits of the flag register. एक flag register की rightmost 8 bits को AH में डालता है और SHF जो है वो AH register के content को rightmost 8 bit में डालता है. ठीक है? ओके देखो लोड से और स्टोर से हमेशा समझ लेना मतलब कि लोड मतलब समथिंग इज बीइंग stored in your AH and store मतलब something is being taken from your AH accumulator. ठीक है लोड एंड स्टोर जो है वो accumulator के साथ यूज होते हैं. लोड मतलब AH, L मतलब accumulator में डालना और S मतलब accumulator से लेना. So LHF instruction transfer the flag bits की rightmost 8 bits को वो AH में डालता है और SHF जो AH के कंटेंट होता है उसको flag register की 8 bits में डाल देता है. ठीक है. So these are the instructions which are obsolete for now because almost all the programs have been transferred to the upper level microprocessors, so they are not in use anymore. But they can be asked in a 1 or for a mark of 1 or 2. Now come to the XLAT, one of the most important instructions because it may be asked in question. It has been asked many times. XLAT क्या होता है और XLAT क्यों पूछी जाती है, ये क्यों ये important है? Because अभी हमने एक तरह की exceptional instruction पढ़ी that was MOVES. Normally क्या होता है you cannot transfer between memory to memory location but MOVES was an exceptional instruction जहाँ पे you were transferring between two memory location. Similarly एक और हमारे पास rule होता था कि when you are using two opcodes that opcodes of the operands that operands should be of the same size. ठीक है जब आप operands यूज करते हो किसी इंस्ट्रक्शन के साथ तो दे शुड बी ऑफ द सेम साइज. 8 बिट होने चाहिए, 16 बिट होने चाहिए, 32 बिट होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 का है और एक 16 का है. XLAT is one of the instruction क्या only one such instruction which works between two operands of different sizes. ठीक है. So this is the second exception of our rules which I have mentioned you in previous chapters कि you cannot use operands of different sizes. So XLAT is one such instruction in which we use two different size of registers. करती क्या है? Converts the contents of AL register into a number stored in a memory table. AL के कंटेंट को लेती है और किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के कंटेंट पे पहुंच जाती है. तो XLAT करती क्या है? देखो XLAT इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऐड द कंटेंट ऑफ AL टू BX. AL के कंटेंट को BX में डालती है जिससे एक मेमोरी एड्रेस बनता है विद इन द डेटा सेगमेंट और जो भी उस डेटा सेगमेंट के अंदर जो भी उस मेमोरी एड्रेस पे कंटेंट मिलता है उसको वापस से AL में स्टोर कर देती है. ठीक है तो यहाँ पे AL और BX जो कि different size of registers say they are being added. So that's why it is one such instruction which breaks the rule of adding two register or working with the two register of the same size. So काम कैसे करती है? XLAT क्या करती है? XLAT the moment you have used XLAT in your program, it will add the content of AL to your BX register. उससे एक मेमोरी एड्रेस बनता है, उस मेमोरी एड्रेस पे जाएगी, कंटेंट उठाएगी वहां से और फिर से AL में डाल देगी. योर इंस्ट्रक्शन इज डन. ठीक है. अगर XLAT पूछते हैं तो यू हैव टू डू दिस ओनली. दिस इज द थिंग. XLAT instruction. This is the next instruction. XLAT instruction is doing what? AL के कंटेंट को उठाया, BX में ऐड किया, you get 1005. You go to 1005, you add it to the DS because it's an offset, and you add it to the DS, you get 11005. You go to 11005 and you get 6D. This 6D will again store to your AL. ठीक है. अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी ना पूरी तो आपका AL का कंटेंट विल चेंज फ्रॉम 05 to 6D. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. Okay, let's move to the next slide. In and out. In and out. In and out देखते हैं. In and out instruction perform input and output operations. In string or out string and in and out are two different sets of instructions. ठीक है. वहाँ पे आप strings की help करते हो और वहाँ पे DI and SI का काम होता है. मैं ठीक है. तो in and out instruction perform input output operations. Similar, kind of very similar to your ins and outs, but they are not transferring strings at a time. ठीक है. Contents of AL, AX और EAX are transferred only between input output device and microprocessor. इनको छोड़ो हम आगे सीधे बढ़ते हैं.
अच्छा, ये पूरी की पूरी इसने यही एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, इन एंड आउट टेस्ट में क्या होता है, आप इन और आउट टेस्ट की हेल्प से डेटा इनपुट करवाते हो और आउटपुट करवाते हो टू सम पर्टिकुलर पोर्ट, ठीक है। किसी डिवाइस के पोर्ट नंबर पे आप या तो डेटा उससे इनपुट करते हो या आप डेटा उस पे आउटपुट करते हो, ठीक है। तो जो इन इंस्ट्रक्शन होती है वो ट्रांसफर करती है डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस इनटू एएल, एएक्स और ईएक्स, ठीक है। एक्यूमुलेटर में सबसे पहले वो डेटा डालती है और जब आउट होता है तो यू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एएल, एएक्स और ईएक्स टू एन एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस। अच्छा, अब इनपुट आउटपुट डिवाइस से इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए इनका जैसे हम पोर्ट नंबर दे सकते हैं, फिक्स्ड पोर्ट एड्रेसिंग, वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग। फिक्स्ड पोर्ट एड्रेसिंग में हम अपने पोर्ट नंबर दे दिया हुआ, सुन लो खाली मेरी बात। पोर्ट नंबर दे दिया, सपोज मेरे पोर्ट नंबर था 25, जस्ट टेक फॉर एग्जांपल कि मेरा पोर्ट नंबर था तो मैंने लिखा इन एएक्स से ईएक्स में स्टोर कर देगा। फिर फिक्स्ड पोर्ट एड्रेसिंग जहाँ पे मैं पोर्ट नंबर मेंशन करती हूँ इंस्ट्रक्शंस के साथ। एक होता है मेरा वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग में मैं डायरेक्ट पोर्ट नंबर, मैं रजिस्टर के कंटेंट में पोर्ट नंबर स्टोर कर चेंज कर तब वो मेंशन करती हूँ, ठीक है। तो फिर यूज करते हो अपने इंस्ट्रक्शन के साथ। और वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग में you use the register to save the port number in your register and then use the, this is how you are set, ठीक है। you should have a port address, आपको लेना कहाँ से आपको इनपुट लेना है, कहाँ से आपको आउटपुट लेना है, ठीक है। उस इनपुट कर सकते हो और अपने रजिस्टर में भी सेव कर सकते हो। अगर आप मेंशन कर रहे हो, डायरेक्ट मेंशन कर रहे हो, इट्स अ वेरिएबल फिक्स्ड पोर्ट एड्रेसिंग। और अगर आप रजिस्टर में डाल के मेंशन कर रहे हो तो इट्स अ वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग, ठीक है। वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग का यही एक यूज है कि सपोज आपका पोर्ट चेंज हुआ या कभी आपको दूसरे पोर्ट पे डिवाइस आपने अटैच किया तो आपका जो सिर्फ कंटेंट है वो डीएक्स चेंज, तो डीएक्स का कंटेंट चेंज होना होगा। आपने प्रोग्राम में जहां जहां इनपुट दे रखा होगा वहां वहां आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनपुट, अगर आप फिक्स पोर्ट की बात करते हो तो यू विल हैव टू चेंज एवरीवेयर, द पोर्ट एड्रेस हैज टू बी चेंज एवरीवेयर वेयर यू हैव यूज्ड इनपुट और आउटपुट, ठीक है। सो वेरिएबल पोर्ट इज मोर कन्वीनियंट एज कंपेयर्ड टू योर फिक्स्ड पोर्ट एड्रेसिंग। Now come to the B swap. I think this B swap, B swap क्या करती है? सेकंड वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन है। एक 32 बिट रजिस्टर को लेती है, ठीक है। 32 बिट, इट्स ओनली वर्क विद 32 बिट रजिस्टर। फर्स्ट थिंग, 32 बिट रजिस्टर को लिया और उसकी फोर्थ बाइट को उसकी फर्स्ट बाइट के साथ चेंज कर दिया और थर्ड बाइट को उसकी सेकंड बाइट के साथ चेंज कर दिया। तो ये क्या होता है ना कि एक तरीके से बिल्कुल रोल कर देती है, एक तरीके से बिल्कुल उल्टा हो जाता है हमारा कंटेंट जो है। सपोज मेरा कंटेंट अभी था 11223344, तो माय कंटेंट विल चेंज टू 44332211, ठीक है। पूछ लेते हैं एक आध क्वेश्चन, एक नंबर या दो नंबर में आ जाती है तो, और बहुत सिंपल सी है। नेक्स्ट आता है आपका सी मूव, कंडीशनल मूव। कंडीशनल मूव इज एन इंस्ट्रक्शन वेयर यू आर यूजिंग सम कंडीशन टू एग्जीक्यूट मूव। मतलब कोई कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होगी तभी आपकी जो है मूव काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। लाइक यू हैव गिवन कंडीशंस इन योर सी प्लस प्रोग्राम आल्सो, जावा वगैरह की होगी, पाइथन वगैरह की होगी, जिसमें आप कंडीशन दे देते ना, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास मूव के लिए भी एक प्रोविजन होता है कि वी कैन हैव सम कंडीशन टू बी स्पेसिफाइड। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और अगर फॉल्स होती है तभी मेरा मूव करे। तो this moves the data only if the condition is true, और अगर false होती है तो move नहीं करे, ठीक है। So suppose one such example is C move z, which instruction moves data only if the result from some prior instruction was a 0। अब इसमें से क्वेश्चन सुन लो कैसे आते हैं। क्वेश्चन इसमें से ये आते हैं, ये आपको पूछा होता है कि C move z पे कौन से फ्लैग बिट्स चेक होते हैं। तो अगर आप अपनी बुक में देखोगे, आई कैन ओपन द बुक हियर, यहाँ पे नहीं दिया होगा, नहीं दिया हुआ। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो बड़ी सारी मूव्स दी हुई हैं, उसमें से जो मेन मूव्स है ना, सी मूव, टी मूव जेड, सी मूव एन जेड, इन सब के फ्लैग्स चेक कर लेना कि इन सब के टाइम पे कौन कौन सी फ्लैग बिट्स चेक होती है, ठीक है। बिकॉज कैसे चेक होता है कंडीशन, कैसे मुझे पता चलेगा कि प्रायर इंस्ट्रक्शन की
जो रिजल्ट था वो 0 था। आई चेक अ फ्लैग प्लेट, अगर वो 0 होगा तो z मेरा 1 होगा, और अगर 0 नहीं होगा तो z मेरा 0 होगा। 1 और 0 यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का काम कर रहे हैं। तो was my result from prior instruction was a 0, true or false? So z में true होगा यानी 1 होगा, false होगा मतलब 0 होगा। So c move z और conditional moves check flag bits को चेक करती हैं और फ्लैग बिट्स की हेल्प से डिसाइड करती हैं कि वेदर मेरी कंडीशन जो थी वो फुलफिल हुई या नहीं हुई। हुई तो मूव कर जाओ, नहीं हुई तो मूव नहीं करो, ठीक है। एंड इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि चलो मैं एक बार बुक खोल ही देती हूँ आपको, तो आपको पता चल जाएगा। कंडीशनल मूव में दिस इज अ टेबल, इसमें जो ये छोटी है ना, इनकी एक बार देख लेना। जैसे सी मूव बी, मूव ए ब्लो, तो वो चेक करेगा अगर सी में 1 है तो यानी जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। सी मूव ए ई, मूव ए अबव और इक्वल, तो वो चेक करेगा योर सी शुड बी 0, अगर सी 0 है तो इट विल मूव अदरवाइज इट विल नॉट, ठीक है। तो यही आपकी जो जितनी भी मूव्स है, कंडीशनल मूव्स है, इनके लिए आपकी फ्लैग बिट्स चेक होती है। दीज आर योर फ्लैग बिट्स। तो क्वेश्चन ये ऐसा आता है कि वो आपसे कुछ फ्लैग बिट्स, कुछ आपसे कंडीशनल मूव को मेंशन करवाएंगे और पूछेंगे कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी फ्लैग बिट्स चेक होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे प्रीवियस पेपर में तो कुछ ही मूव्स हैं जो इंपॉर्टेंट होती है और उन्हीं की फ्लैग बिट्स वो आपसे पूछते हैं। तब चैप्टर 4 अगेन, सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स, ये सब हमें नहीं करना है, ये सब आप छोड़ देना। रॉक एंड पे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सब छोड़ो। मेन थिंग वो स्टिल है 4.6 तक ही हमें, वो 4.5 तक ही हमें करना था, ठीक है। ये सब आप अगर आप एक बार पढ़ के देखोगे तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको, ठीक है। ये है नहीं वैसे हमारे कोर्स में। So we are done with this chapter 4 today. Now I'm open for doubts. Ask me if you have any doubt. हाँ जी, देख लो एक बार, चेक कर लो, फिर I will take the attendance and I'll leave the class. चैप्टर 4 से 4.5 तक है, 4.5 किया ना हमने। हाँ, ये सब कोर्स में नहीं है आपके। कोई डाउट नहीं है, छोड़ दूं क्लास? कौन कौन बच्चे लेट आए थे, अब तो पता भी नहीं चलता लेट कौन आया है, because you can join directly without any admission. Okay, so 26 स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम चिराग को समय आना चाहिए बस। चिराग, हाँ चिराग से पूछ लेते हैं। चलो चिराग, कोई डाउट तो नहीं है? आया भी है वो? कोई डाउट नहीं है, नाइस। चैप्टर 4 और चैप्टर, हाँ कोई डाउट आया? ओके, अभिनव you have a doubt? No ma'am. Okay. मन कुमार लिविंग। कौन लिविंग कर? पबजी खेल रहा था। मन कुमार तो गया। कौन कुमार भाग गया? मन कुमार लिविंग लिखा आया था मैम। हाँ एक बच्चा भाग गया। मैं चिराग से एक बार पूछ लो, इसने सुना भी है जो इसे डाउट है। पूरा टाइम तक नहीं यार।
कहते हैं हाँ, सूरज। चिराग। 150 रुपए दूंगा भाई ट्यूशन के। चिराग कितना क्या पढ़ा हमने आज? चिराग मैम आस्किंग ओए रियल मैम क्वेश्चंस मेरे, ओए मैम ये भी थे सारे, ये जो बोल रहे हैं। I hope चिराग the तो मैम same. पबजी खेल रहा ये था। भाई बस ध्यान रखना कि इसके जो सेक्शन 4.3, 4.4, 4.5 है बहुत अच्छे से पढ़ लेना जब भी पेपर में दो, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और जो वो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन थी उसमें से हार्डली आज तक कोई क्वेश्चन आया है। अब तो नहीं आते होंगे, बट आई विल गिव एन अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट आल्सो. So I think we are done with today and I'm leaving the class. Okay, thank you class. If you have no doubt, we'll meet on Monday. Bye-bye. Take care. बाय मैम। Bye. बाय मैम। हेलो। हेलो। मैम गई क्या? This is why I bomb peoples. This is why. अभी ना हाँ ना इसलिए तेरे को मैं बॉम्ब करेगा बेटे। हैं तेरे जो इमोजी है ना उसका डायलॉग बोल रहा हूँ। वो तो पता है मेरे को। बॉम्ब उठा लोगे ना चिराग? और बताओ तेरे क्या को चल तो रहा है? मस्त चिराग तेल में लड़की फ्राई नहीं मिली? करके खाएगा, तेरे को तो तेल में फ्राई करके खाएगा, टेंशन ना ले। अरे यार विवेक शर्मा को डाउट है। विवेक शर्मा को डाउट है कि चिराग बॉम्ब उठा पाएगा या नहीं। ओहो मैं जा रहा हूँ, मेरे को खेलना ही है। व्हाट इज दिस बिहेवियर विवेक? व्हाट डाउट? वेट ये आईटी लैब में जावा का प्रोग्राम देखी क्या? हाँ जावा, हाँ मैंने तो पहले के दो दिखाए नहीं थे। अबे इसमें क्या कहते हैं, ये जो जावा वाले प्रोग्राम थे उसमें कौन से हैं? एक तो वाला हो गया जो स्टार्टिंग में दिखाया था, जावा स्क्रिप्ट भी करता है। बैंक वाला है और और बैंक वाला दूसरा कौन है। जावा के करने हैं, जावास्क्रिप्ट के थोड़ी ना करने हैं। जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट कल स्टार्ट कर दी भाई, नहीं रात ना? को कौन बताता है कि जावास्क्रिप्ट करूंगी कल जाके? यार वो अलग ही है यार, पहले प्रोग्राम में थोड़ा टाइम लगना चाहिए, उसको इतनी जल्दी से करवा रही है। भाई, क्लास के एक दिन पहले भेज दिया, ये लो बेटा ये रहा सारा रेफरेंस तुम्हारा, और ये अब मेरे को कल जावा का प्रोग्राम दिखाना। भाई तो कितने बजे लो से बेटा क्लास? सारे भेजा मैं अपने। भाई मैम ने डाले 10 बुक एक साथ, बोली कि बेटे सारे पढ़ के कल 2 प्रोग्राम दिखा देना बस। अबे ओए, जीवी से तो लॉग किया नहीं जा रहा, वो पढ़ा रही है मैं जावा। कितने बजे है क्लास इसके? 12-15 बोला है ना। 2 घंटा है, बता देगा। मैं सोच रहा था ट्यूटोरियल दुनिया से उठाऊं, बट वो भी कितना कॉम्प्लेक्स है यार। ओए किसी ने तो किया था वाला सेकंड प्रोग्राम। फर्स्ट वाला दे दो यार फिर मेरे को। प्राकृतिक सेकंड प्रोग्राम कोई किया था? अबे सेकंड कर तो लिया मैंने। हिमांशु मेरे को भी रात को बोला तो हिमांशु टेंशन नहीं है इजी है है। तू डाल कर। हिमांशु भाई। अरे इजी है भाई, सेकंड क्वेश्चन इजी है। ट्यूटोरियल दुनिया से उठाओ और अपने वेरिएबल के नाम चेंज कर दो बस। अरे मेरे तो साइट ही नहीं खोल रहा। फर्स्ट वाला भी वो एक वैसे ही किया है, फर्स्ट वाला भी वैसे ही किया था। फर्स्ट वाला मैंने किसी और से लिया था, उसमें भी वेरिएबल चेंज किए थे। दे ना तो देख दिखा दो सही है, दे तो सही है। सेंड कर दे, दिखाता हूँ तेरे को। अरे हाँ, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, फोन से हूँ, थोड़ी देर में भेज दूंगा। बाय बाय। अच्छा हम साथ ही हैं बस। हिमांशु म्यूट है, चलो ठीक सपोज म्यूट है, कुणाल छोड़ गया। नेक्स्ट में मिलते हैं, चलो बाय 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 बाय।